تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی لاہور زمان پارک میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں، آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پارٹی کی قیادت کو، سینئر لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس میٹنگ کا خلاصہ 4 قراردادوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 2 قراردادیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور 2 قراردادیں ہمارے سیکریٹری جنرل اسد عمر صاحب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو میں پہلی قرارداد پیش کر رہا ہوں۔ جی سر۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت، جس پہ کور کمیٹی و پارلیمانی پارٹی شامل تھی، عدلیہ اور قوم کی توجہ دستور پاکستان کی ناقابل تنسیخ حصے کی جانب مبذول کرانا چاہتی ہے، جو مقننہ کی تحلیل کے بعد ہر صورت 90 روز میں انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے، اور اس مدت میں 1 روز کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ انتخابات کے انعقاد کی اس مہلت میں 1 گھنٹے کی توسیع کے لیے کسی بھی جواز کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ تحریک انصاف نے رضاکارانہ طور پر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ 2 اسمبلیاں تحلیل کی جن میں اس کی حکومت تھی۔ انتخابات کے انعقاد میں کسی بھی جواز کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں اس کی آڑ میں تاخیر آئین پر حملے کے مترادف ہوگا، جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی زد میں آئے گا۔ دوسری قرارداد، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت فواد چودھری کے اغوا اور بغاوت کے جعلی مقدمے کے اندراج کی شدید مذمت کرتی ہے، اور ان کے جسمانی ریمانڈ پر دیے جانے اور ان سے دہشت گردوں جیسا سلوک روا رکھنے پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے۔ یہ دستور کی آرٹیکل 14 کی صریحاً خلاف ورزی اور عدل و انصاف کے قتل عام کے مترادف ہے۔ ایک ہی مقدمے میں 3 مرتبہ جسمانی ریمانڈ دیے جانے کی کوئی نظیر اس سے پہلے دستیاب نہیں ہے۔ تحریک انصاف چیف جسٹس پاکستان سے ملتمس ہے کہ اس صریحاً ناانصافی کا فوری از خود نوٹس دیا جائے، اور آج کی اس میٹنگ میں ہم نے ان کی اہلیہ جو میرے ساتھ کھڑی ہیں، ہبا، ان کو بھی دعوت دی، تاکہ یہ جو ایک ماں کی جو ایک بچیوں کو جو تڑپ ماں نے دیکھی ہے، وہ انہوں نے اپنا اس کا حال بیان کیا، جس پر ہمیں بہت صدمہ اور افسوس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ فواد چودھری کو انصاف ملے گا اور رہائی ملے گی۔ بے شمار نعرے نہیں ہوتے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ اب میں اسد عمر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنی پہلے فواد کے اس کے اوپر رہبا بول دیں۔ آپ بولنے اچھا ہے۔ جی، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج چیئرمین صاحب کا بہت بہت میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے آج مجھے بلایا اور عزت دی، اور جس طریقے سے میرا ساری بات سنی، جو تشدد فواد پہ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح عدالت میں، جس طرح سے ان کو لایا جا رہا ہے دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے منہ پہ عدالت میں، اس کی سخت مذمت کی ہے چیئرمین صاحب نے، اور آج انہوں نے سارے جو میں نے ان کو بیان کیا ہے سارا نظارہ، اس کے اوپر ان کو بہت ہی افسوس ہوا ہے جس طرح کا رویہ فواد صاحب کے ساتھ پیش ہو رہا ہے۔ بچیوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ریزولوشن پاس کی گئی ہے چیئرمین صاحب کی طرف سے، سیکریٹری جنرل صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے، کہ جی بچیوں کو ملنے ایٹ لیسٹ ان کو حق دیا جائے،
जो कि एक की उम्र 6 साल है और 4 साल है। बच्चियों को जज साहब ने कहा कि उनको बख्शी खाने में मिलाया जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलाने दिया गया। सो वी विल बी फाइलिंग अ कंटेम्प्ट इन अपर कोर्ट ऑल्सो कि फवाद साहब को बच्चियों से क्यों नहीं मिलवाया गया। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा पे कर रहे हैं, इसको रोका जाए। थैंक यू। जैसे शाह साहब ने बताया कि इस मुश्तरका इजलास में जिसमें तमाम साबिका MNAs ने शिरकत की और कोर कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की, 2 और करारदादें भी मंजूर की गई और उन 2 करारदादों को मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक्तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मजीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की एमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर निहायत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और फिफ्थ कॉलमिस्ट की किरदार और अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरी इनहराफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें, बल्कि इन पुरस भी की जाए जिनकी निशानदही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आज़ाद मीडिया तसलसल से करते आ रहे हैं। ये तीसरी करारदाद थी जी। और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफ़क्का तौर पर पास की गई और उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतज़ामी के ज़रिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई और आगे बिजली गैस के नरखों में इजाफे की भी बात हो रही है, और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। इस पॉलिसी से बेरोज़गारी में जकड़ा है, क्योंकि माशी ढांचे की तबाही के बायस मुल्क दिवालियापन की दहलीज पर आ खड़ा हुआ है और यूं न सिर्फ मईशत बल्कि हमारी कौमी सलामती पर ख़तरात के साए गहरे हो रहे हैं। तो ये 4 आज करारदादें थी जो चारों जो हैं मुतफ़क्का तौर पर तमाम पार्लिमानी पार्टी और जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं उन्होंने मंजूर की। शारी, ये बताइएगा कि कौमी असम्बली के जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसके ऊपर क्या फैसला किया गया कि आया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या आप लोग अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? इस पर तवील बहस हुई, तबादला ख्याल हुआ और पार्टी ने जो फैसला किया मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ ने इन इंतखाबात में जो 33 हलके जो अभी जिनको डी नोटिफाई किया है और जिनका शेड्यूल जारी किया है, उन इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम हलकों में हमारे उम्मीदवार
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब होंगे और उसी हलके से जहां इंतखाबात हो रहे हैं, जो कि हमारे वहां के इलेक्टेड एमएनए थे, वो बहैसियत कवरिंग कैंडिडेट अपने कागजात जमा करवाएंगे। तो ये फैसला हुआ है कि इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और ये भी इजहार हुआ कि एक तरफ जो कि आईनी तकाजा है कि 90 दिन के अंदर जो तहलील असम्बलियाँ हैं उनके इंतखाबात करवाए जाएं, उनसे इन्हराफ किया जा रहा है, कतरा रहे हैं, और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की खातिर ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो करवाए जा रहे हैं। बहरनौ तहरीक इंसाफ सियासी मैदान में मौजूद रहेगी, आवाम से रुजू करेगी और आवाम को एक मौका, जैसे 17 जुलाई का उन्हें मौका मिला था, तब भी हमारी पंजाब में तो बिलखुसूस एक मुखालिफ हुकूमत थी, अपनी मर्ज़ी के अफसरान तैनात किए गए थे, पुलिस के बलबोते पर पंजाब में करवाए गए, लेकिन आवाम ने अपना फैसला सुना दिया और हुकूमती अज़ाइम को खाक में मिला दिया। जो मुनहरिफ लौटे थे उनको मुस्तरद किया और इमरान खान के मैंडेट को तस्लीम करते हुए बल्ले के निशान पर मोहर लगाई। हम तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक मरतबा फिर जो इमरान खान पर भरपूर एतमाद रखती है, वो 16 मार्च को जिस दिन इंतखाबात का इनेकाद होना है, वो एक वाज़ेह पैगाम देगी कि कौम इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद करती है, कौम तहरीक इंसाफ के साथ है, और ये जो टोला है जिसने पाकिस्तान को आज इस माशी दलदल में धंस दिया है, उससे नजात चाहती है और एक मरतबा फिर इस अज़म को दोहराएगी कि कौम मुतालबा कर रही है कि फिल फौर नए इंतखाबात का इनेकाद किया जाए और जितनी ताख़ीर की जा रही है इससे मुल्क का नुकसान होगा।